Hello, hi, Yeah, हेलो Altamash. अल्तमाश। hi Nelson, hi Praveen. तो क्या हम शुरू करें? हरीश सर है नहीं, Yeah, Sure. sir. Yeah. शुरू कर सकते हैं हम लोग। I'm just like there are 20. Just check. There are 25. I'm just waiting for 2 more, and then I think we can start. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। That's okay. So Altamash, Yes, sir. one slide of the full form of LGBT. So that if you can open. हाँ. This one? No, the one we gave the short form of every, अच्छा that. the new one. हाँ. This one? Yeah. I also thought we should, say that even in asexual, as the last category, there is a very wide range. Like there are some who are not attracted itself. There are some who are attracted, but only till cuddling. They don't want sexual The act, intercourse. the sexual. There are some who could be penis repulsed. There is, so even in that there is a wide range. Like so. Sure. And also Altamash, the sequence, put Q cure earlier to intersex. Just now what you typed. Yeah. Because like the abbreviation. How we? Yeah, QIA. And actually the plus also, which means that it's not a fixed thing. Even there could be a newer abbreviation that could come. So what you could do is, above these words, write the short form LGBTQI, because it's not, we don't know why these words are written. So now there are 29. Those two must have joined, Nelson. Yeah, I think we can start. From our team, we are like how many? I think 4. Is Almas there? No, Almas will join, but So I think the students all must have come. Just in students, if so what I mean is like from the team we are 5 now, I think. Okay. And Swapna also hasn't joined yet. Swapna also hasn't joined. So 5 minus 20. 4, 5. Anurag is also here. 6. Oh, okay. Shahrukh is here. Shahrukh. Also Ronit. He's there. Ronit is there. Ronit is there. Yes, sir. I'm here. Hi, Ronit. No. La tarde 35 minutos. 37. कौन है वो कहाँ से वो?
I think -6 people, whatever is the number, 6 of us are. Yeah. So 26 there should be, no? 3, 4, 5, 6, 7. Neha is here, I think, ना? 8. Yeah, she joined now. तो मेरे ख्याल से टीम से मतलब हम 8 लोग हैं, 25. Then I think 20. तो 8 हटाएंगे अगर हम 32 में से, तो 24 लोग अभी जुड़ चुके हैं पार्टिसिपेंट्स, 24 पार्टिसिपेंट्स। 33 हो गया, 25 हो गया है। So Listen, shall we? 25. We are waiting for 2 more. अच्छा, we're waiting for 2 more. Or maybe we can, I think we should start. Yeah, let's start. I think they'll just join. Yeah, they'll anyway. Okay, hello people, welcome back. जो तीसरे दिन का आखिरी सेशन पोस्ट लंच में आप लोग का वापस से सबका स्वागत है। कुछ बातें हमने जो प्री लंच स्टार्ट की थी सेक्सुअलिटी को लेकर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर, एक्सप्रेशंस को लेकर, उसको हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी उस पर और बातचीत करेंगे, और भी कुछ सवाल अगर होंगे आपके तो हम वो भी लेंगे। और जैसा कि कई मैंने देखे थे, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है शायद नया भी है और शायद उतना पब्लिक डोमेन में उतना इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो चैट बॉक्स में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्वेरीज आ रहे थे, तो मे बी हम क्या कर सकते हैं कि कई सारे सवाल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास चैट सारी सेव है, मैं वापस से उस चैट्स के थ्रू जाऊंगा और जो भी हम सवाल है वापस से हम उसको, जैसे मुझे याद है विदित ने पूछा था शीमेल के बारे में, कई सारे ऐसे सवाल आए थे, तो अगर हमने कोई भी मिस किया है तो हम वापस से उसको ग्रुप पे एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी बिल्कुल बातचीत करके। वापस से आते हैं। सो डू यू वांट टू स्टार्ट विद? Yeah. So you know, अभी ये जो वर्ड्स लिखे गए LGBTQIA, तो ये शॉर्ट फॉर्म है जिसके ये सब वर्ड्स हमने देखे, तो इसमें एक दो बातें जो रह गई थी। बाइसेक्सुअल वर्ड जो था तो उसका मीनिंग तो हमने जाना है, लेकिन जो बहुत बार लोगों के अंदर जो गलत फहमियां हैं इस वर्ड के बारे में, तो एक लोगों की धारणा है कि ये लोग जो होते हैं जो खुद को बाइसेक्सुअल बोलते हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो कंफ्यूजन के कारण खुद को बाइसेक्सुअल बोलते होंगे या क्या कारण होगा? क्योंकि कंफ्यूजन कब बोलेंगे, जब उन्हें पता नहीं है कि वो एक के प्रति आकर्षित हैं या दोनों के प्रति। जब उन्हें पूरी तरह पता है कि वो दोनों के प्रति आकर्षित हैं, तो और वो बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां ये भी हैं कि वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, उनका जो बिहेवियर है वो इररिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि देखो, वो एक तो शायद शादीशुदा भी होंगे, और शादीशुदा होने के बाद अगर वो किसी पुरुष के साथ रिश्ता रखते हैं, तो ये एक तरह से वो बोलते हैं कि आपका गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। तो आप सिर्फ मजा लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, दरअसल आप नहीं इस तरह से दोनों के बारे में इक्वली सोचते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चनर भरा था पहले दिन, इसमें एक क्वेश्चन इसके बारे में था कि बाइसेक्सुअल लोग जो हैं वो ज्यादातर कंफ्यूज्ड होते हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये लोगों की धारणा होगी कुछ, लेकिन जो बाइसेक्सुअल व्यक्ति हैं वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। जिससे जैसे हमने लेस्बियन गे के बारे में जाना, उसी तरह से बाइसेक्सुअल व्यक्ति को भी अपनी तरह से जीने का अधिकार है। तो ये बात ध्यान में। फिर ट्रांसजेंडर के बारे में हमें जो जाना, उसका मीनिंग क्या है, और उसको जैसे कुछ समय पहले बताया कि कानूनी तौर पे 7-8 साल पहले एक जजमेंट आया था, जिसको नालसा जजमेंट करके बोला जाता है। ये नालसा नाम की संस्था है शायद हैदराबाद में, नेशनल लीगल अथॉरिटी। तो इन्होंने ये एक जजमेंट दिया था कि जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं
उनको मान्यता देनी चाहिए, ऐसे दिया था। और उसके पहले का जजमेंट शायद उसके पहले स्लाइड में है कि जो समलिंगी लोग हैं उनके बारे में जजमेंट शायद पहले जिक्र भी आया था। सेक्सुअलिटी वर्ड का मीनिंग हम जानने कर रहे थे, तो एक जन ने कहा सेक्शन 377। तो ये सेक्शन 377 क्या है कि यहाँ पे जो एक डेफिनेशन दिया है कि एज पर द इंडियन पीनल कोड, ये जो भारतीय दंड विधान संहिता ये जो है, इसके तहत ये जो सेक्शन है, इसके तहत उन्होंने डिफाइन क्या किया है कि जो निसर्ग नियम के खिलाफ, ऑर्डर ऑफ नेचर के खिलाफ अगर कोई कार्नल इंटरकोर्स करता है, मतलब इस तरह से इंटरकोर्स करता है कि जिसका अंजाम बच्चा पैदा होने से होगा, जो भी कृति करेंगे जिससे बच्चा पैदा होगा तो वो जायज है। ऐसी कोई भी कृति ऐसी कोई भी सेक्सुअल एक्ट जिससे बच्चा नहीं पैदा होगा वो निसर्ग नियम के खिलाफ है, ऐसा मानना है। और तो ये जो सेक्शन है बोलता है इस तरह के कोई भी सेक्सुअल एक्ट्स होंगे जो निसर्ग नियम के अनुसार होंगे तो वो निषिद्ध है, वो अननेचुरल है एज पर दिस सेक्शन। और उसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन जो 10 साल तक चलेगी, और ये कानून है। तो अभी इसका इतिहास क्या है आज की तारीख में, शायद सबको मालूम होगा कि ये जो कानून है इसका जो रीडिंग है वो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा कम किया। वो रीडिंग ऐसे पहले था कि पुरुषों के साथ अगर कोई या औरत के साथ अगर कोई रिलेशनशिप है या प्यार है तो वो पहले कानून की नजर से उसको वैधता नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल। इस तरह का एक्ट अगर पुरुषों के साथ औरत के साथ। लेकिन ये कानून जो है इसके अंदर लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो आप देख सकते हैं कि शुरुआत हुई थी 2001 में कि दिल्ली की एक संस्था है, इन्होंने एक पेटिशन डाला था। नाज फाउंडेशन नाम की दिल्ली की संस्था है, इन्होंने एक पेटिशन डाला था कि जो लोग समलिंगी होते हैं पुरुष, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जीने का हक है, तो उसको मान्यता मिलनी चाहिए। इस तरह का एक पेटिशन डाला, जिस पेटिशन को जुलाई 2009 में दिल्ली के हाई कोर्ट ने मान्यता दी। 2 जज थे, एपी शाह और जस्टिस मुरलीधर। इन्होंने कहा कि ये जो गुनहगार करके समलिंगी व्यक्ति को देखा जाता है वो गलत है, उनको वैसा ही अधिकार है जीने का, लिबर्टी का और इक्वालिटी का, जो अपनी देश की घटना संविधान देती है। तो इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे उसको खारिज किया, उस पेटिशन को, और कहा कि ये सेक्शन के तहत समलिंगी व्यक्ति गुनहगार करके नहीं देखे जाएंगे। तो जब ये डिसीजन आया तब बहुत सारे जो समलिंगी व्यक्ति और उनके लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ एक बहुत बड़ा जल्लोष का वातावरण देश पर रहा। there was a celebration, but ये जुलाई 2009 में जजमेंट आया, लेकिन उसको फिर कई लोगों ने चैलेंज किया कि ये, आप सबको मालूम है कि कोई भी कंट्री के एक अगर कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया, जब तक उसको चैलेंज कोई नहीं करता तब तक वो कानून सिर्फ उस जगह के लिए कायम नहीं है, लेकिन पूरे कंट्री को लागू होता है जब तक उसको कोई चैलेंज नहीं करता। तो ये जब फैसला जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो पॉजिटिव रहा, इसको फिर बाबा रामदेव और कई सारे लोगों ने, धार्मिक और राजकीय पक्षों ने, पार्टीज ने, व्यक्तियों ने चैलेंज किया, और काफी सारे 20-25 पेटिशंस आए, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट, ये पेटिशन 2013 को आए और काफी समय तक
लगभग आप देख सकते हैं कि 2013 से लेके 18 तक कुछ भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया नहीं। वो पेटिशन वैसे के वैसे पड़े रहे और बाद में 2018 को एक फैसला आया जो 3 जजेस थे जिसमें एक महिला जज भी थी और इन्होंने बताया कि 2 व्यक्तियों को आपस में प्यार करना, फिर वो व्यक्ति पुरुष पुरुष हो औरत औरत हो, उन्हें प्यार करने का हक है। इसीलिए वो सेक्शन 377 के तहत अगर वो गुनहगार माने जाते हैं तो वो गुनहगार नहीं माने जाएंगे। उसमें एक जज जो महिला जज थी इंदु मल्होत्रा, इन्होंने ऐसे कहा कि जो बर्ताव हमने एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए अब तक किया इतने साल, उसके लिए समाज को माफी मांगनी चाहिए एलजीबीटी कम्युनिटी की, कि उन्होंने उनके साथ भेदभाव का और उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए। इस तरह से एक जजमेंट में वो वाक्य था। नेक्स्ट, तो ये जजमेंट था अबाउट होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, जो आज की तारीख में वो गुनहगार करके नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि आज की तारीख में 2 साल पहले जो ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, के तहत उन्हें आपस में प्यार करने का और आपस में अगर सेक्सुअल कृति करते हैं तो वो उनका अपना निजी मामला है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि अभी ये जो कानून है इसके अंदर भी थोड़े और लड़ाई जो है समलिंगी की वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनको बाकी के अधिकार जो हैं शादी करने का, फिर बच्चे गोद में लेने का, प्रॉपर्टी का अधिकार, ये सब के बारे में अभी तक कुछ भी फैसला नहीं है। मतलब उसके लिए एक अलग लड़ाई जो एलजीबीटी समुदाय के व्यक्ति हैं उनको लड़नी होगी और उसके लिए जनरल सोसाइटी ने भी उनकी साथ देनी चाहिए, तो वो लड़ाई अलग से चालू रहेगी। अभी हम दूसरा कानून जो है वो है नालसा जजमेंट। जो ये जजमेंट जो मैंने बोला 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिया और उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसजेंडर एक समुदाय है तृतीय पंथी, तो इनको मान्यता देनी चाहिए और इनको समान हक, जैसे आम कोई भी नागरिक का हक है उसी तरह से समान हक देने चाहिए। ऐसा फैसला दिया 2014 को। और ये फैसला में एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज क्या था? ये क्लॉज था कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को अगर ऐसे मानता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं, तो उसे पूरा अधिकार होगा कि अपनी खुद की पहचान क्या है ये सबको बताने का। इसको इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ वंस ओन जेंडर। अपना खुद का जेंडर, मतलब मैं जैसे बोला शुरू में कि मैं पैदा हो गया लड़का या लड़की या ट्रांस या इंटरसेक्स करके, लेकिन मुझे कैसे जीना है आगे जाके ये मैं खुद तय करूंगा। मेरा जेंडर क्या है, मुझे कैसे बर्ताव करना है, मेरा रोल क्या है, अगर मैं लड़का हुआ तो या लड़की हुई तो मैं खुद वो करूंगा फैसला कि मेरी पहचान क्या है। मैं किसके चाहत कर रखता हूँ, किसके साथ चाहत नहीं रखता, ये मेरा खुद का ही है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट था इस फैसले का, इसको अभी चैलेंज, खतरा पैदा हो गया है कि ये जो है बात, तो इसको अभी चैलेंज है ये नए बिल से। ये जो बिल है 2019 लिखा है, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल। तो ये जो बिल है इसको अभी दोनों लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है, अभी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए वो रुका हुआ है। तो अब तक उसके ऊपर फैसला नहीं है, मतलब ये एक्ट करके नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो एक्ट होने के मार्ग पर है। और देश में जितने भी ट्रांसजेंडर के हकों के लिए काम करने वाली संस्थाएं हैं वो अभी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बिल पास नहीं होना चाहिए इसलिए, क्योंकि ये बिल के अंदर आपत्ति देने वाली ये 4 बातें हैं। 4 बातें जो आपत्ति देने वाली हैं। पहला है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव
से उनको दूर रखा गया है। उनकी आइडेंटिटी जो है, मतलब वो खुद बोलेंगे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, इस बात से अभी वो दूर रहेंगे, क्योंकि ये बिल के अनुसार एक कमिटी होगी हर एक जिले में, जो कमिटी सामने वाले व्यक्ति को देखेगी, परखेगी और एक तरह से इंटरव्यू लेगी और वो डिसाइड करेगी कि सामने वाली व्यक्ति तृतीयपंथी है कि नहीं। आप समझ गए ये फर्क क्या है? जो कानून पास हुआ 2014 में, वो बता रहा था कि हर एक व्यक्ति को ये तय करने का अधिकार है, तो ये नया जो बिल है ये इस तरह से बोलता है कि कोई कमिटी डिसाइड करेगा कि कौन ट्रांसजेंडर है, कौन ट्रांसजेंडर नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा कि अगर समझो कोई ट्रांसजेंडर भीख मांगते हुए दिन के समय में और रात के समय में अगर अपना शरीर बेचता होगा, तो वो उसे गुनहगार करके माना जाएगा, तो ये एक बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही घृणा देने वाली बात है कि ऐसा प्रोविजन इस एक्ट में है, इस लॉ में है, सॉरी, जो अभी एक्ट नहीं है लेकिन ये लॉ में, ये बिल के अंदर ये प्रोविजन है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अगर भीख मांगे हुए पकड़े जाएंगे तो वो गुनहगार करके उन्हें देखा जाएगा। और एक अलग है कि पनिशमेंट जो है, अगर कोई भी अब्यूज किसी का करता है, तो ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई अब्यूज करेगा तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा या ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा। लेकिन अगर समझो आप देखें कि रेप नाम का जो कानून है, रेप के ऊपर, बलात्कार के ऊपर, उस पे हम देख सकते हैं कि कम से कम सजा, अगर कोई लड़की के साथ बलात्कार हो तो वो कम से कम शायद 10 था या अभी 20 किया है, 10 है। So that's what I wanted to change. It can range from 10 years to life imprisonment. So it's not 20 years. It can be 10 years to imprisonment for life. तो ये अगर देश का रेप का कानून है, लेकिन अगर ट्रांसजेंडर के साथ अगर कोई होता है इस तरह से सुलूक जिसमें सेक्सुअल अब्यूज वर्ड है, तो फिर उसको कम सजा क्यों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको 6 महीने की सजा सिर्फ होगी अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ बुरा सलूक करेगा और खास करके यौन संबंधी उसके साथ बुरा व्यवहार करेगा। तो ये सब आपत्तिजनक है। लेकिन आज की तारीख में क्या दिख रहा है कि जो ट्रांसजेंडर के हकों के लिए काम करने वाली संस्थाएं या ट्रांसजेंडर, ये सब देश भर की इकट्ठा है लड़ने के लिए, लेकिन आम लोगों की जो उसके साथ मिलनी चाहिए, एक तो जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी हो तो हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, तो आपको याद होगा हमने जो क्वेश्चनर आपको दी थी उसमें ये भी एक क्वेश्चन था कि ट्रांसजेंडर्स का जीना बहुत बार कभी कभी आम औरत से भी ज्यादा बदतर है। फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज का उन्हें बहुत बार सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक बार उन्होंने, ज्यादातर जो ट्रांसजेंडर हम देख रहे हैं समाज में, वो पैदा होते ही मेल होते हैं, लेकिन बाद में उनमें चाहत है कि वो लड़की जैसे, औरत जैसे साड़ी पहने, और इसीलिए वो घर छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती हैं। और ऐसे समय में उनको जीविका के लिए अगर कोई साधन नहीं है या कोई उन्हें ऑक्यूपेशन दूसरा कोई नहीं देता, तो ऐसे समय में भीख मांगना या अपने शरीर का बिक्री करना, इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प या चारा नहीं होता है। ये हमें जान लेना चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं कि हमें उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए, दूसरों का दर्द समझना चाहिए। तो ये हमारे सामने एक चुनौती है कि हम इनकी परिस्थिति को सही तरीके से समझते हैं या नहीं। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको पहले 5 साल पहले एक पॉजिटिव एक निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था, आज हम देख रहे हैं कि ये नया बिल जो पॉलिटिशियन लाने जा रहे हैं, एक तरह से बता रहे हैं कि हम उनके हकों के लिए काम कर रहे हैं। वो बोल रहे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि उनके मानवीय हकों का हनन है।
तो ये बात हमें बतानी थी कि आप सबको ये, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है। और दूसरा एक पॉइंट जो सवाल पूछा गया था पहले, वो था कि गे होना मतलब हिजरा है क्या, ऐसे एक आया था सवाल। तो आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि हिजरा जो वर्ड है, कभी कभी ये वर्ड गाली गलौज करके दिया जाता है। क्या तुम हिजड़े जैसे हो, ऐसे अगर कोई एक दूसरे को बोलता है और गाली के तौर पे बोलता है तो वो गाली है। अगर इस तरह से किसी को गाली दे रहा है अपमानजनक, तो वो बोलता है क्या तुम हिजड़े जैसे हो, तो वो गाली है। लेकिन अगर तुम बोलोगे कि हिजड़ा नाम की एक कम्युनिटी है, हिजड़ा नाम का एक कम्युनिटी है जिनको आप रिस्पेक्ट दे रहे हो कि ये अपने आप को भी वो हिजड़ा मानते हैं, अगर उनको एक सम्मान से आप बोलोगे कि आप हिजड़ा हो, तो हिजड़ा जो है एक कम्युनिटी है विद इन ट्रांसजेंडर। ये हमें जान लेना चाहिए फर्क क्या है। ट्रांसजेंडर जो वर्ड है एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला एक वर्ड है, जो जिसका मीनिंग हमने थोड़ी देर पहले लंच के पहले क्या किया था कि कोई व्यक्ति अगर पैदा होता है एज अ बेबी बॉय और वो आगे अपने आप को सोचता है कि मैं गर्ल हूँ, या उल्टा होगा, पैदा हो गई लड़की लेकिन अपने आप को वो लड़का मानने लगती है, उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या जानना है कि वो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति एक कम्युनिटी का हिस्सा होना चाहती है, जो हिजरा करके कम्युनिटी है, जो ज्यादातर हम देखते हैं कि पुरुष होते हैं पहले पैदा होते, लेकिन उन्हें इस तरह की सोच होती है कि मैं औरत हूँ, और वो साड़ी पहनते हैं और वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं, तो वो हिजरा नाम की एक कम्युनिटी है। तो वो हमें जान लेना चाहिए कि और एक पहली बात शायद आ गई थी एलजीबीटी का जब जिक्र हुआ, जब हम गेज और लेस्बियन के बारे में या इन जनरल ये जो क्यूअर कम्युनिटी है इसके बारे में जब बात करते हैं, तो एक ऐसा गलत फहमी है कि ये सब बातें हैं ये विदेशी हैं। जो गेज, लेस्बियंस, होमोसेक्सुअल व्यक्ति हैं वो अपने संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ऐसे कई लोग अगर मानते होंगे तो वो हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि आप में से कोई बता सकेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताते हैं कि काफी सालों से ये अपने देश का एक हिस्सा रह चुके हैं। फिर वो चाहे कामसूत्रा, जैसे प्रशांत ने लिखा है चैट बॉक्स में, नाम का ग्रंथ, जो वात्सायन नाम के एक ऋषि ने लिखा था कामसूत्र, उस पे पूरा एक चैप्टर जो है होमोसेक्सुअलिटी पे है, पूरा एक खंड का एक पूरा पार्ट सेक्शन पूरा समलैंगिकता पे है। फिर अभी और बताया गया चैट बॉक्स पे खजुराहो, वहां की जो मंदिरें हैं, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो नाम की एक जगह है, वहां पे ऐसे आपको 10-12 मंदिरें जो मेन है, और भी कई मंदिर हैं लेकिन जो मेन 10 एक मंदिर है, वहां पे आपको अलग अलग एक्सप्रेशन जो हैं होमोसेक्सुअलिटी के, और यहाँ तक कि प्राणियों के साथ संभोग करते हुए भी दृश्य हैं। तो विविधता है सेक्सुअलिटी की, वो वहां पे झलकती हुई दिखाई देती है। और ये अगर इतने साल पुराने हैं, काफी साल पुराने, तो एपिक्स में रामायण महाभारत, आप में से शायद सबको मालूम होगा कि रामायण में एक जिक्र था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जब वनवास से राम लौटे वापस जाने के लिए अयोध्या, तो जब वो पहुंचे तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर वहीं पे रास्ते पे खड़े हुए दिखाई दिए, और फिर उन्होंने उनको पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति थे तो उन्होंने क्या जवाब दिया होगा, कुछ लोगों को याद है? जब राम अयोध्या वापस लौटे वनवास करने के बाद, so there were transgenders who were waiting there, who were standing there on the outskirts of the village. So उन्होंने ऐसे कहा कि हम यहाँ पे तब से हैं जब से आप बाहर गए हो, क्योंकि आपने जाने से पहले क्या कहा था, जो भी पुरुष औरत हैं वो अपने अपने घर जाए,
आपको हमारे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम वनवास जाएंगे और फिर लौटेंगे। तो उन्होंने वाक्य बोलते हुए कहा था जो भी स्त्री पुरुष हैं वो अपने अपने जगह जाए घरों में। तो ट्रांसजेंडर से वो बोले हम अपने आप को स्त्री और पुरुष न मानते हुए अन्य मानते हैं कुछ अपने आप को, तो हम क्यों जाएं, तो इसीलिए हम नहीं गए। एक तरह से उन्होंने ये कबूली दिया कि हम वहीं के वहीं रह गए, हमारी स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं रह गए अटके हुए, ऐसे उन्होंने कहा। तो ये रेफरेंस हमें दिखाई देता है। फिर अर्पण ने कहा था चित्रांगद नाम का अर्जुन की वाइफ है, और शायद थोड़ा कल जिक्र आया बृहन्नल्ला का जिक्र आया था, बृहन्नल्ला का जिक्र आया था कि, और शिखंडी का, जो महाभारत के पात्र हैं, जो जिसमें हमने देखा कि अर्जुन को अगर कोई पसंद आया, जो अर्जुन मेल थे और उनको एक औरत पसंद आई, तो इसीलिए उन्होंने उनको एक पुरुष पसंद आया, और इसीलिए पुरुष पसंद आया, इसलिए अर्जुन ने अपने आप को औरत का रूप ले लिया। तो ये अगर महाभारत में संभव था, जो हम जिसके बहुत दाखले मिलते हैं, इसका मतलब एक ट्रांस व्यक्ति, एक नॉन बाइनरी व्यक्ति का भी, नॉन बाइनरी मतलब जो अपने आप को या तो पुरुष या औरत में नहीं डालना चाहता, तो ये सब इसके उदाहरण हमारे महाभारत में हैं। और मुझे लगता है काफी बातें प्रशांत ने लिखी है कि नर नारायण, ये जो है मंदिर में देवगढ़ में है, और दोनों मेल उर्वशी को जन्म देते हैं बिहार में। बहुनहारा, ये मुझे नहीं पता, शायद बृहन्नल्ला मुझे पता है। अर्जुन ने एक पूरा साल अपने आप को यूनक करके, अभी ये वर्ड भी हमें जान लेना चाहिए कि कुछ लोगों को वाकिफ है, जानकारी है इस वर्ड की, तो आज की तारीख में ये वर्ड यूनक शुड नॉट बी यूज्ड, इट इज अ डेरोगेटरी वर्ड। यूनक का लिटरल मीनिंग है कि जिसने अपना लिंग छाट दिया हो, अपना लिंग औजार या कोई भी चीज इस्तेमाल करके वो अपना पेनिस काट दिया हो, छाट दिया हो, तो ऐसे व्यक्ति को यूनक करके बोला जाता है। लेकिन आज ट्रांसजेंडर में जो हिजड़े या अन्य लोग हैं, कुछ लोग होंगे जो अपना लिंग छाट देते हैं क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि वो औरत है और उनको पुरुष का पेनिस नहीं चाहिए, उनके शरीर का हिस्सा। तो ऐसे कुछ लोग करते होंगे। तो जो लोग करते हैं, जो छाट लेते हैं, पहले ये वर्ड यूनक हुआ करता था, अभी ये इस्तेमाल नहीं होता है। बहुचारा करके एक वर्ड है, बहुचारा देवी करके उसके मंदिर हैं बहुचारा के। तो एनीवे हमें ये जो कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि ये हमारी सभ्यता, मान्यता, हमारी संस्कृति का हिस्सा रह चुके हैं। समलिंगी व्यक्ति, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ये काफी सारे सालों से हमारे समाज का एक हिस्सा है, और हम उनके प्रति देखने का हमारा नजरिया क्या है वो साफ करना है, हमें वो टटोलना है और जान लेना है। और भी एक बात खाली रह गई इसी में कि जो समलिंगी व्यक्ति हैं, अभी देखो कानूनी तौर पे मान्यता मिल गई है 2 साल पहले जो कानून आया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन समाज में मान्यता मिलना आज भी कठिन है और वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों में आज भी मान्यता है कि ये इस तरह का व्यवहार जो है वो गलत है, पुरुषों का पुरुषों के प्रति आकर्षण ये संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि इन व्यक्तियों को एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और बहुत सारे जो अपने आप को एज अ सेक्सोलॉजिस्ट, एज अ सेक्स के बारे में डॉक्टर कहलाते हैं, फिर वो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, मतलब कि एज इफ उसके अंदर कोई बीमारी हो। जो व्यक्ति अपने आप को बताता है कि मैं समलिंगी हूँ या मेरा आकर्षण समलिंगी है, मैं पुरुष हूँ, मुझे पुरुष आकर्षित होते हैं, मैं औरत हूँ, मुझे औरत के प्रति आकर्षण है, ऐसा जो खुलकर बोलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, या शॉक थेरेपी जो हम जान सकते हैं जो अमानवीय, इनह्यूमन है, लेकिन
कुछ सारे डॉक्टर्स हैं वो इस तरह के टेस्ट उन्हें करवाते हैं, पेरेंट्स उनको लेकर जाते हैं। तो ये भी हमें जान लेना चाहिए कि ये मानवीय हकों का खंडन, अगर हम मानवीय हकों की बात करते हैं तो ये उनके मानवीय हकों के बारे में भी सोचना चाहिए जो समलिंगी हैं और जो अपने विचार से अपने आप को समलिंगी कहलाना चाहते हैं। लेकिन आम लोग अगर समाज के उसे बीमार व्यक्ति मानते हैं और उसकी बीमारी का इलाज कुछ टेस्ट करवा करके, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन थेरेपी, इस तरह से कन्वर्ट करने का, कि अगर तुम हेट्रोसेक्सुअल हो तो हम अगर आप होमोसेक्सुअल हो तो हम आपको हेट्रोसेक्सुअल करवाएंगे, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है कि किसी का ओरिएंटेशन से आकर ले रहा है तो वो ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हर एक का जो ओरिएंटेशन है, जैसे ही वो उम्र में आता है व्यक्ति, वो आकार लेने लगता है। तो उसको फिर से बदलना किसी और के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी लोग अपने समाज में पितृसत्ता, जिसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट डे को बात की, ये पितृसत्ता कायम रखनी है। तो अगर वो कायम रखनी है तो बच्चे पैदा होने चाहिए, और बच्चे पैदा होने चाहिए तो वो औरत और मर्द के रिश्ते के ही होने चाहिए। ये कायम रखने के लिए ये व्यवस्था है। मुझे लगता है हम यही रुकते हैं, क्योंकि हमें 2 और एक्सरसाइज करानी है ताकि अलमास फिर से अपना सेशन चालू करे। हाँ बिल्कुल। वो 2 एक्सरसाइज हैं। So Altamash, we are not going to have breakout session. Okay. We are just going to read those sentences Okay. and ask the open classroom, open session. Yeah. ठीक है. That I think we should do now, and then we'll come to the essentials of a relationship. Okay. ठीक है. तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे कि जितना आप अब तक सुने, तो जितना हम सुने उसके अनुसार हमारी कुछ राय हम तैयार करते हैं। क्या चीज सेक्सुअलिटी में, यौनिकता में एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। हर एक व्यक्ति ये करता है। तो हम कुछ 5 वाक्य अभी देखेंगे, और हमें सबको ये जो भी लगता है वो अगर खुलकर बोले तो बहुत अच्छा है, सबके सामने बिना झिझक, क्योंकि हमें कोई भी टेस्ट नहीं है यहाँ, या कोई किसी को गलत या सही ऐसे नहीं देखने वाला है। आपको जो भी लगता है कि कुछ 5 वाक्य हम लिखेंगे एक के बाद, आपको बताना है कि आप एग्री करते हो या डिसएग्री। अगर एग्री करते हो तो क्यों, अगर डिसएग्री करते हो तो क्यों डिसएग्री करते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेंटेंस। यहाँ पे लिखा गया है मास्टरबेशन लीड्स टू वीकनेस, जिसको हिंदी में है हस्त मैथुन से कमजोरी होती है। या मिथुन वर्ड जो है इज रिलेटेड टू अ सेक्सुअल एक्टिविटी। मिथुन का मतलब वो है, तो हस्त मैथुन मतलब अपने हाथ से स्टिमुलेट की हुई बात जो है, उससे अपने लिंग को अपने हाथ से स्टिमुलेट करवाना, ये जो है इससे कमजोरी होती है। ये बात से आप एग्री करते हो या डिसएग्री। मैं एक बार नेल्सन से चाहूंगा कि ये वाक्य जो है इसको सिंपल आसामी में ट्रांसलेट करें, मैं उसका मीनिंग समझाए। Prashant has said no. Yeah, but let's সবে হৰিশ জি কোৱেশ্চনটো বুজি পালে নে? মোৰ লাগিছে যদি সবে বুজি পালে তেতিয়াহ'লেতো আৰু এলাবৰেট কৰিব নালাগে, বাট জাষ্ট ইন কেস মানে মাস্টাৰবেশন যোনটো ক'লে তেওঁ লিডছ টু উইকনেছ, মানে মাস্টাৰবেশন কৰিলে উইকনেছ ফিল হয়। এইটো কি সঁচা কথা? তোমালোকে এগ্ৰি কৰা নে তোমালোকে ডিসএগ্ৰি কৰা? তোমালোকে যদি এগ্ৰি কৰা তেতিয়াহ'লে ইয়েস বুলি দিয়া, আৰু যদি ডিসএগ্ৰি কৰা তেতিয়াহ'লে নো বুলি দিয়া। So did they understand the literal meaning, that stimulation by hand? Because I didn't hear that in Assami that you were telling. You just used the word masturbation again in Assami. So the meaning of the literal meaning of the word, has everybody understood? Yeah, so now they have put yes. I also asked that, but I'm not sure for which they have put yes. Correct. So and they have actually given their explanation. So I think they have got what masturbation is. Yeah. तो
कुछ लोगों ने नो कहा है, कुछ लोगों ने यस कहा है. So let us listen to the viewpoint of those who said yes. जिन्होंने यस कहा कि कमजोरी होती है, वो अपनी बात रखे. क्या उन्हें लग रहा है, क्यों लग रहा है? Yes, it leads to weakness. So Parag, Sumit, Pulak, Wilson, তোমালোকে yes কলা. So এতিয়া sir সুধি আছে যে yes or মানে কেলে তোমালোকৰ লাগে যে masturbation কৰিলে weakness feel হয়. তোমালোকে unmute কৰিও ক'ব পাৰা, but or কমেন্টতো লিখিব পাৰা. जयहुद्दिल ने शायद लिखा है. हाँ, জাহিদুল তুমিও লিখিছা yes. ইয়াত একো মানে তোমাৰ হেৰি নহয়, ৰাইট আৰু ৰং বুলি নহয়, আমি জাস্ট জানিব বিচাৰিছো যে তোমাৰ ধাৰণাটো কি, কেলে তোমালোকে ভাবা. So Sumite, তুমি ফার্স্টত কলা yes it leads to weakness. তাৰপিছত আকৌ ইয়াত দিলা I feel energy. So তাৰ মানে और एक बात अभी हृदय ने लिखी है कि हेलो सिर्फ अगर हो या बोलो. Is it my voice audible? who is this? This is Wilson. Wilson, okay. Yes, Wilson. Sir, মই যি বুজিছো মই তাৰে মই কৈছো হা. Sure. তুমি হিন্দীত ক'ব পাৰিলে হিন্দীত কৈ দিয়া আৰু নহলে মই আকৌ ট্ৰান্সলেট. Okay. So whatever I understood, I want to just explain in a brief way. Why I said yes is like masturbation is good, like unless when we do over, it really hurts, and it is bad because it is like that we are just disagree from our responsibility, and we are hurting ourselves, and we are just doing that masturbation. That's what I have understood. One time is good, like sometimes it's good, but if we'll make it habit, then it's not good for a man. That's what I have understood. So one thing even others have written in the chat box, कि वो excessive होगा, then it is not good. Then it may lead to weakness. ये point आ गया. तो ये I think everybody would agree on that. कि कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में है, even when you are not feeling like doing masturbation, but for the sake of doing it as a mechanical act, अगर वो आप लगातार कई बार करते रहोगे तो वीकनेस आएगा. ये फैक्चुअल पॉइंट है. क्या फैक्चुअल पॉइंट है? If you do it in excess and if you just do it to prove a point, and even when you are not feeling like doing it, you are doing it mechanically. Because आपको मालूम है, एक बार वो आप masturbation करोगे और उससे जो आपका सीमेन है वो बाहर ड्रॉप हो जाता है. बाद में दूसरा सीमेन तैयार होने को टाइम लगेगा, लेकिन उसके साथ साथ शारीरिक रूप से भी आप तैयार हो. क्या? क्योंकि अगर आप फिजिकली उतने नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक्सर्शन आ जाएगा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसी ने कहा वो वर्ड हैबिट बन जाएगी तो वो तकलीफ दे है. तो हैबिट बन जाएगी मतलब
एक वास्तव में आपको बताता हूं, क्योंकि एक वर्ड किसी ने यूज किया है, नाइट फॉल इज बैड, ऐसे चैट बॉक्स में लिखा है। किसने लिखा था? बृहत्तबर। हाँ, उन्होंने लिखा नाइट फॉल इज वीकनेस। तो अभी दो बातें हमें जाननी है, नाइट फॉल एंड मास्टरबेशन, आर दे द सेम थिंग? ইয়াত যে বৃহত্তবৰে দিলে নাইট ফলটো, এইটো আমি সবে বুজি পাইছো নে নাইট ফলটো কি হয়? আৰু বুজি পালে ছাৰে সুধিছে যে নাইট ফলটো আৰু মাস্টাৰবেশনটো একেটা বস্তু নে বেলেগ বেলেগ বস্তু? सो नाइटफॉल हम किसे बोलेंगे? So most of them are saying no, they are not the same thing, except Wilson has said yes. Okay, Arpan is also saying nightfall. For he's hearing it for the first time. So Arpan, and for Beled June Huna Nai Ketiao, Harish ji explain koribo what is nightfall. So Harish ji, some of them don't know, so maybe you can. तो यू नो ये जो वर्ड है अभी ये टेक्निकली वर्ड है, अभी इसको हिंदी मराठी में अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इसको कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो भी एक्चुअली रियल वर्ड नाइटफॉल को स्वप्न अवस्था, यू नो, इज द लिटरल मीनिंग स्वप्न अवस्था। मतलब क्या, कोई लड़का अगर प्यूबर्टी में आता है, उम्र में आता है, जब वो 12-13 साल का होता है और उसको आवाज जो है उसकी बदलती है, उसके शरीर में बाल, चेहरे पे यू नो दाढ़ी और ये आना, तो ये जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, ऐसे में ही एक जो चीज है वो नाइटफॉल नाम की चीज है, जो ज्यादातर अपने कम्युनिटी में इंडिया में कोई उस लड़के को बताता नहीं है कि ये नाइटफॉल है, यू नो। तो नाइटफॉल क्या होता है कि अभी देखो ये वर्ड्स आ गए हैं अपने चैट बॉक्स में। विदित ने लिखा है स्वप्न दोष, यू नो, स्वप्न दुख करके लिखा है, लेकिन उसको हिंदी में स्वप्न दोष करके एक्सपर्ट्स बोलते हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी एक्सपर्ट देखे हैं जो बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ सेइंग स्वप्न दोष, क्योंकि वो दोष नहीं है, उसको हम स्वप्न अवस्था बोलनी चाहिए, जो अभी भैरव ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। When someone is in sleep and subconscious mind, they think of something sensual, मतलब वो रात को सोते समय सपना देख रहे हैं, और ऐसे में हमने देखा होगा जब हम भी 12-13-14 साल के, अभी ये एज कम होते जा रहा है धीरे धीरे, तो उस समय एग्जैक्टली आशुतोष ने जो वर्ड यूज किया वेट ड्रीम्स, तो उसको ही दूसरा वर्ड है, एंजेलस ने कहा, गेस किया, तो वही है कि ये जो ड्रीम्स होते हैं और उस समय आपकी अंडरवेयर पैंट गीली हो जाती है रात के समय जब आप सोए हुए हो, आप स्वप्नावस्था में हो, उस समय जो अभी उसको एक वर्ड धातु करके लिखा है वेल्सन ने, तो ये वर्ड्स भी अभी ज्यादा से ज्यादा समय यूज नहीं किए जाते। वो जो बाहर आता है उसको वीर्य वर्ड है, सीमेन, धातु वर्ड के बजाय अगर वीर्य वर्ड यूज किया तो वो सही है, क्योंकि वीर्य वर्ड है मतलब सीमेन। वो सीमेन जो है, जैसे आप उम्र में आते हो और जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हो एज अ मैन, that means most part of your life even before death, this semen is created in your body, आपके शरीर में ये सीमेन तैयार हो जाता है, और जब वो तैयार होता है और उसे बाहर निकलना है तो कौन सा मार्ग चाहिए? तो अगर सोते समय उसके मन में विचार आए, वो बहुत 13-14 साल का है, तो उसे किसी ने इसके बारे में बात नहीं किया है, तो वो स्वप्न अवस्था में ही उसको वो सीमेंट उसके पैंट में बाहर आ जाता है और वो गीली हो जाती है पैंट। तो बहुत बार नेक्स्ट डे उसको एहसास हो जाता है कि क्या है, तो वर्ड यहाँ पे यूज किया है सेमिनल फ्लूइड, हमारे एक साथी ने यूज किया है सेमिनल फ्लूइड करके। तो वो एक फ्लूइड है जो लिक्विड जैसा है, सीमेन जिसको बोलते हैं, इसीलिए वर्ड सेमिनल है। तो क्या होता है, जब नाइट फॉल्स होते हैं तब वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियसली वो बाहर रात के समय आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो लड़का बड़ा होता है, अगर समझो ये नाइट फॉल नहीं आए और
वो शरीर के बाहर वो सीमेन जब जाता है तो वो अगर उसे जाना है तो और कौन सा तरीका है, तो वो मास्टरबेशन के जरिए अपने हाथ से अपने लिंग को सहलाना और उसके द्वारा मन में विचार लाना कि एज इफ आप सेक्स कर रहे हो, मतलब विजुअली स्टिमुलेट करके या सोच के या फैंटेसाइज करके आप अपने लिंग को आप हिला रहे हो और उसको उससे आपको आनंद मिल रहा है। तो ये जो कृति है इसको मास्टरबेशन बोलते हैं। तो ये अगर आपने किया तो फिर नाइटफॉल नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो सीमेन बाहर जा रहा है और जैसे सीमेन बाहर जा रहा है आप एक बार मास्टरबेट करने के बाद तो कुछ ही घंटों के बाद और सीमेन तैयार होता है अपनी बॉडी में। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि कुदरती ऐसे करिश्मा है नेचर का कि वो सीमेन का प्रोडक्शन हमेशा चलता रहता है। और मुझे लगता है एक बात किसी ने चैट बॉक्स में लिखी है कि जैसे एक कोई वाटर टैंक का ओवरफ्लो होता है, यू नो, कभी कभी वाटर टैंक भर जाता है, ओवरफ्लो होता है, उसी तरह से सीमेंट अगर ज्यादा मात्रा में है तो उसका फ्लो होगा। तो वो अगर फ्लो हो गया तो इसका मतलब दूसरा सीमेंट आ जाएगा, यू नो। तो बहुत बार हमें ना, जिन्हें यूथ लोगों को जानकारी नहीं है अपने शरीर के अंदर ये जो चेंजेस हो रहे हैं या सीमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो उस अज्ञान का, उस इग्नोरेंस का काफी सारे लोग बुरा इस्तेमाल करते हैं और हमें गलत फहमियां और गुमराह कराने वाले, मिसलीडिंग करने की, जो ये अभी चैट बॉक्स में ही हमने देखा कुछ लोगों ने लिखा है इससे कमजोरी आती है, वीकनेस आता है, कुछ दो एक लोगों ने लिखा है। लेकिन हमें वास्तव क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है कि ऐसे कमजोरी जो है अगर आप बार बार करोगे कंटिन्यूअसली, एक दिन में कई बार दिखाने के लिए, तो फिर उससे थकावट आएगी। लेकिन यू नो जो कमजोरी इन जनरल एक बार आपको जब मन करे तब आप करेंगे मास्टरबेशन, तो उससे कमजोरी नहीं आती, बल्कि जैसे चैट बॉक्स में लिखा है कई लोगों ने, बल्कि उससे उनको रिलीफ मिलता है। यू नो, उन्होंने कहा है कि इट गिव्स यू सम रिलीफ एंड सम हैव रिटन प्लेजर। तो हमें वास्तव ये जानना है कि ये इसकी विशेषताएं हैं, यू नो। तो ये यू नो बहुत सारी गलतफहमियां, एक किसी ने लिखा है, ए पर्सन डू मास्टरबेशन ऑफन देन, विकास ने लिखा है, देन हिज बॉडी विल बिकम वीक एंड टायर्ड, टिल देन ही विल फाइंड वीकनेस एंड दिस विल डिक्रीज हिज इम्यून सिस्टम। तो मुझे बताना है विकास कि ये जो आपने लिखा है ना, ये फैक्चुअल नहीं है, साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि यू नो वो जो वीकनेस हमें बोला जाता है हमारे मन में डाला गया है किसी ने, वास्तव में वो वीकनेस नहीं होता और उसका इम्यूनिटी पे कुछ असर नहीं होता। ये फैक्चुअल आप जान लो, यू नो। आप ही की तरह मेरे जो पहले कई स्टूडेंट्स थे, उनको गलतफहमी का वो शिकार हुए और उनके मन में इस बात का बहुत क्या बोलते गिल्ट रहा कई सालों तक कि वो करते थे मास्टरबेशन, लेकिन उनको कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर या किसी ने बोला कि ये गलत है, ये मत करो, इससे तुम वीक हो जाओगे, इससे तुम्हें आगे के सालों में तकलीफ होगी। तो वास्तव हमें जानना है कि ऐसा नहीं होता। You know, masturbation doesn't lead. It is a perfect normal activity for every human man. It is a perfect normal activity. और बृहत्तन ने बोला nightfall happened basically I guess. So you know ये जैसे मैं बोला कि एडिक्टिव हो सकता है, ऐसे प्रशांत लिख रहा है। तो इम्पोर्टेंट है कि यू नो बहुत बार हमें ये जानना है कि ये जो सेक्सुअलिटी के बारे में मामले हैं ना, ये बहुत बार पर्सनल होते हैं कि कोई बोलेगा कि मैंने मास्टरबेशन कितनी बार करना चाहिए, तो इसका जवाब क्या है, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो यू नो आपकी नजर में जो एडिक्टिव है मे बी द नीड ऑफ समबडी एल्स। We must realize that कि आप एडिक्टिव बोल रहे हो। एडिक्टिव का मीनिंग अगर आप समझ लें कि जो मैंने पहले बोला, दिखाने के लिए एज अ मैकेनिकल एक्ट यू आर डूइंग, देन यू नो यू माइट गेट एज। सो इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट यू एंड आई, व्हाट वी शुड रिमेम्बर कि ये अपनी जिंदगी का एक पार्ट है। क्या मैंने बोला इम्पोर्टेंट
कि आप बाकी के दिन भर जो काम करते हैं, पढ़ाई और जो भी करते हैं, वो चालू ही रहना चाहिए। उसी में अगर जब आपको फीलिंग आए इस तरह की कि मैं अपने आप को रिलीव करूं, तो अपनी प्राइवेसी में अगर आपने किया और वो कितनी बार किया, ये आप पर निर्भर है। ये वास्तव आप जान लीजिए। तो एडिक्टिव ऑल्सो वी हैव टू बी क्लियर व्हाट डू वी मीन एडिक्टिव किस वजह से। अगर कोई 3-4 बार कर रहा है और अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उसके लिए वो एडिक्शन नहीं है। So we must remember that. So I think let's go to the next sentence. And just wanted to say, you said man. We also need to understand that anybody can like masturbate. It's not. Probably because it's a group of men. That's why we are talking of masturbation. It can be anyone, even or ladkiyan bhi kar What I sakti hain. meant Yeah. was, I'll just correct. What I Yeah. meant, that semen is manufactured in a man at the age of puberty till the age of his death. That is what I mean. That's I just want. बात है। बट जैसे अभी अल्तमाश ने बताया, मास्टरबेशन लड़कियां करती हैं क्या? ऐसा अगर सवाल आपको पूछा जाए तो क्या आएगा जवाब? यस। सो अगर मैं उसको और ऐड करूं कि डू मैरिड वुमेन आल्सो मास्टरबेट? सो बहरम ने भी कहा दे ऑल्सो डू। या सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज, but we must realize now one thing. Now you all have said that they are doing, but बहुत सारे, now we are men who are wanting to be sensitive and caring. We want to spread that. We must realize कि जैसे masturbation का meaning हम क्या बोलते हैं, हाथ से stimulus करके अपने आप को आनंद देना। अगर ये पुरुषों के लिए इसका meaning ये है, तो औरत के लिए भी इसका meaning यही होना चाहिए। लेकिन वास्तव क्या है, बहुत सारे पुरुषों के अंदर गलत धारणाएं हैं कि वुमेन मास्टरबेट करती हैं जब वो कोई भी वस्तु अपने प्राइवेट पार्ट में डालती हैं, इस तरह से वो मास्टरबेट करती हैं। इस तरह की गलत फहमी काफी सारी पुरुषों में कि they put some particular thing in their vagina or in their private part. This has been found by research that many of the men think that way. So if some of us laugh, we should also realize that this is a reality for many. बहुत सारे लोगों के लिए सच्चाई इस तरह से सोच पुरुषों में है कि ऐसे औरतें मास्टरबेट करती हैं। So that we should remove. Just as we understand the meaning of masturbation is manual stimulation by hand for men, similarly it is manual stimulation for women. ये बात इसीलिए बताई क्योंकि लोग गलत फहमी करते हैं और so that we have clarity. They miss out on clitoris. So let's go to the next sentence because we have very limited time. So yeah. Can you see the next statement? No. Sorry. I have put it. Yeah. Now we can see. तो एक सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं कि a girl should not have sex before marriage. एक लड़की को शादी से पहले यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए. Do you agree? कितने सारे लोगों को नहीं एग्री करते, नो करते कह रहे हैं? ठीक है, अगर ज्यादातर लोगों ने अभी हृदय ने कहा पर्सनल चॉइस है, राइट? तो लेट्स हैव व्हाई वी केप्ट द सेंटेंस, देयर इज अ रीजन. तो आप अगर बता सकते हैं, कोई भी, सभी लोगों ने ज्यादातर आंसर नो दिया है, करेक्ट? तो कैन एनीवन से व्हाई यू सेड नो? Angelis has a different view also, Harish ji. Correct. Okay. Morally I agree, but in general view I disagree. So can you explain? Yeah, I think Yeah. Hello. Yeah, yes. Yeah, if we look on the religious point of view, I think sex before marriage is prohibited. No?
And if we skip the religious view and all, then every girl has the freedom to have sex before marriage, I guess. They have the right to have sex before before marriage. It's their own opinion, I guess. What do you feel? Yeah. What do I feel means? I mean, that is the question to you. I mean, a girl should not have sex before marriage is the question to you. It's not what the religious or what morally is. I think this a girl should not have sex before marriage. Yeah, no, I think no. They can have, I think. That's my view. Okay, great. So, Abhi, now, because some of you have written the reasons in your chat box. Yeah, they have a right to, it is personal, right? They have the right, just as a man has a right, wo likha hai. Now let us, because we have, our role is of a leader, of a mentee later on, we have to reach out to other men. Why do you think, do you think that this would be the viewpoint of a majority of the people in society? आप सभी लोगों ने no लिखा है. What does the majority of the people must be thinking in our society? Any guess? Is that the same viewpoint of a majority of the people? I think society will say they should not have sex before marriage. And now let us understand why they say it so. Because abhi Ahir Bhaurav ne likha hai, they look it as a sin. Why they look it as a sin? Let us look from the viewpoint of the people in society who would think that the answer for this is no. That a girl should not, the answer for this is yes, according to them, because somebody says only husbands have rights over the body of the woman. Prashant ne likha hai. Aur kya karan hai? What are generally the reasons told that a girl should not have sex? Just think. Aloke kele baba je generally eneke koa hoy je eta swaliye biar agot sex koribo nalage. Very right. Arpan ने बहुत लिखा है, क्या बोला है? That she can get pregnant, usually believed. And what is the repercussion of that? अगर वो pregnant हो गई तो क्या होगा? As if वो जिम्मेदार बर्ताव नहीं किया उसने. She did not took the precautions to ensure that she will become pregnant, right? So he says that a child out of wedlock. मतलब वो एक तरह से रिलीजन की नजर से और एक immoral. She will be catcalled, प्रशांत ने कहा. ये भी बोला only husband have rights over the body of the woman. Correct. जो हमने देखा last 2 days में that how men have control over women's lives, including reproduction. कल हमने बोला और अभी एक जन ने फिर लिखा है कि marriage validates the child to the society. Without marriage, the child is not validated. मतलब वो बच्चा अगर होना है तो वो शादी के थ्रू ही होना है. ये जो है. तो अगर समझो मैं ये वाक्य है, अगर मैं बोलूं कि ये सेंटेंस क्या लिखा है, a girl should not have sex before marriage. अगर मैं ये वाक्य चेंज करूं that a boy should not have sex before marriage, what do you think would be the response of the largest society? এতিয়া যদি আমি সেন্টেন্সটো চেঞ্জ করি আমি কও যে a boy should not have sex before marriage, তেতিয়া হলে তোমালোকৰ ৰায়টো কি হ'ব? Okay. जो रिपरकशन होंगे कि अगर समझो बॉय हैज सेक्स बिफोर मैरिज, आर द रिपरकशन, उसके जो अंजाम हैं
वो सेम होंगे कि if a girl is having sex before marriage, will they be the same? So, you know, we are getting response in the chat box that, you know, boys will be boys sort of thing. We are men, don't teach us. But what is my question? What are the repercussions if a girl has sex before marriage? And what are the repercussions if a boy has sex before marriage? Are they the same? Okay, তেওঁ সুধিছে যে এটা ছোৱালীয়ে যদি বিয়াৰ আগত সেক্স কৰে তেতিয়াহলে কি হয় আৰু এটা ল'ৰাই যদি বিয়াৰ আগত সেক্স কৰে তেতিয়া কি হয় আৰু এই যিকিটা হয় ল'ৰাৰ কাৰণে আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে দুইটাই কি একেই হয় নে বেলেগ বেলেগ হয় Hello. Okay, Chudamani has something interesting. He says, yes, boy must not do sex before marriage. Girls also want fresh. Yeah. So what he means, the word girls also want a boy to be virgin. Yes. No, fresh के बजाय वो word इस्तेमाल किया जाता है ना. But the question is, virginity जो word है, वो भी बहुत subjective है. Virgin होना मतलब क्या? You know, do you think that it differs from person to person? प्रशांत ने कहा है virginity मिथक है. You know, ऐसा कुछ चीज नहीं होता वास्तव में. It is just a thought in our mind. But actually there's nothing like virginity according to him. Do you agree? कि जो बहुत बार एक पॉइंट बताया जाता है कि यू नो जो योनि का पटल बोलते हैं यू नो वो फट जाता है अगर वो फट गया तो मतलब वर्जिन नहीं है यू नो गर्ल्स के अंदर जो यू नो योनि पटल को क्या बोलेंगे वजाइनल आउटर हाइमेन वर्ड तो वो अगर सो यू नो हृदय ने कहा मुझे पता नहीं तो मुझे लगता है कोई बता सकता है कि क्या जो यू नो बहुत बार एक लड़की जब एज में आती है तो यू नो कभी कभी दौड़ने के कारण या स्विमिंग करने के कारण या और चीजों के कारण तेज भागने से यू नो और किसी कारण ये जो हाइमेन नाम की चीज है वो रप्चर हो सकती है वो फट सकती है जो एक वजाइनल का कवरिंग है साइकिलिंग राइडिंग लिखा है विकास ने तो ये सब कारणों के कारण प्रशांत ऐड कर सकता है प्रशांत प्लीज गो ऑन Hello, am I audible? यस यस Yes. So actually, the literal meaning of virgin या फिर जो वर्जिन का जो पूरा अस्थायिक रूप से जो मीनिंग होता है उसका मतलब सिर्फ एक ही होता है क्या आपने सेक्स किया है बट इंडिया में या फिर ग्लोबली नाउ पीपल यूज वर्जिन ओनली टू वुमन या फिर वुमेन मर्द को कोई नहीं पूछता कि आपने क्या सेक्स किया है क्योंकि उसके निशानी नहीं दे सकते यहाँ पे औरतों को हाइमन से पहचान होता है तो that is why virgin is a very derogatory and mythical word I believe and mostly people do now. Thank you. So one is वो एक डेरोगेटरी वो बुरा वर्ड है लेकिन आपने किसी ने बताया कि ये जो वर्ड है वो भी वर्जिन नाम की कोई चीज फुल प्रूफ हो नहीं सकती कि एक जो टेस्ट आप बोलते हैं वर्जिनिटी टेस्ट अब आपको शायद मालूम होगा कुछ लोगों को कि कुछ समुदायों में इस तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं यू नो कि शादी के दिन अगर समझो वो पत्नी को यू नो सेक्स करते हुए ब्लीडिंग होना चाहिए इसीलिए एक चद्दर रखी जाती है बेड के नीचे अगर वो ब्लीड हुई मतलब वो वर्जिन है अगर ब्लीड ना हुई तो वो वर्जिन नहीं है अशुद्ध है ऐसे अनेक तरह के यू नो गलतफहमियां बिलीव्स और ऐसे यू नो सब कुछ कम्युनिटीज में आज भी हैं आज भी इस तरह के टेस्ट वर्जिनिटी टेस्ट करवाए जाते हैं जो एक्चुअली में इलीगल हैं यू नो सो विकास ने बताया कि व्हाई देयर इज नो वर्जिनिटी टेस्ट फॉर बॉयज व्हाई ओनली फॉर गर्ल्स कैन एनीवन आंसर
Sir, like I said, because girls usually have hymen, which breaks. When it breaks, sometimes they bleed, sometimes they do not. It depends on the flexibility, and hymen usually breaks when you do heavy exercises after you pick up something. Boys do not have something like that. And also It is the expectation is that the hymen will break only when sex is being done. Understood? That why majority of the people give importance for that, because as you said,